Hello students, in the preceding class we have discussed the concept of risk and several ways of classifying risk. Today we will continue further and discuss primarily the identification and treatment of pure risk. There are certain pure risks which are associated with economic insecurity for both individuals and families as well as commercial businesses. Hence, risk is divided into two categories: personal risk and commercial risk. Personal risk covers individuals and families, whereas commercial risk covers the risk that affects business firms. So previously I have told you about these risks: pure and speculative risk, diversifiable, non-diversifiable risk, enterprise risk, systemic risk. Today we will cover personal and commercial risk. So major personal risks are personal risk, property risk and liability risk. These are three types of risk which are covered under personal risk. What is personal risk? Personal risk involves situations or circumstances where there is a possibility of loss or reduction in income, extra expenses or depletion of financial assets due to premature death, inadequate retirement income, poor health, unemployment, etc., which directly affects an individual or family. Such risks are called personal risk. So personal risk basically means the risk which affects a person, चाहे वो प्रीमच्योर डेथ होने के कारण फाइनेंशियल बर्डन है या प्रॉपर रिटायरमेंट इनकम ना होने के कारण किसी तरह का रिस्क है, पुअर हेल्थ से, अनएम्प्लॉयमेंट से, इन चीज़ों से, इन इवेंट से, इन सिचुएशन से जो प्रॉब्लम या रिस्क जो फेस करता है इंडिविजुअल या उसकी फैमिली, उसे पर्सनल रिस्क बोलते हैं. देन अदर टाइप ऑफ रिस्क इज प्रॉपर्टी रिस्क. This risk can again be faced by an individual and family. Also, the property risk is faced by businesses also. Property risk जो है business को भी होगा, तो ये commercial risk का भी पार्ट है. देखिए यहाँ पे ये commercial risk का भी पार्ट होती है. इसी तरह से liability risk भी commercial risk का पार्ट है. मीन्स liability का रिस्क बिजनेस को भी है, प्रॉपर्टी का रिस्क भी बिजनेस को हो सकता है और ये इंडिविजुअल या उसकी फैमिलीज को भी हो सकता है. प्रॉपर्टी रिस्क होता क्या है? इट इज़ अ रिस्क ऑफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, सम डैमेज टू द प्रॉपर्टी. तो डैमेज होने के कारण या उसकी चोरी होने के कारण जो फाइनेंशियल लॉस है, दैट रिस्क इज प्रॉपर्टी रिस्क. ये डायरेक्ट लॉस भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है. इनडायरेक्ट, so any damage caused to a property by certain reasons, like for example because of fire, lightning, tornado, windstorm, flood, earthquake and numerous other causes, so such damage to property is property risk. What is direct loss? Direct loss results from physical damage, destruction or theft of the property, like destruction caused to house by fire. फायर के कारण जो है आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई है. नॉट ओनली हाउस, एनीथिंग, एनी प्रॉपर्टी दैट यू ओन, इफ़ इट इज़ डैमेज्ड फिजिकली और डिस्ट्रक्टेड या उसकी चोरी हो गई है, तो वो हमारा डायरेक्ट लॉस है. इनडायरेक्ट लॉस या कंसिक्वेंशियल लॉस, ये क्या है? इट रिजल्ट्स इनडायरेक्टली फ्रॉम फिजिकल डैमेज और थेफ्ट. फॉर एग्जाम्पल, because of damage caused by fire, you are now forced to live in a rented accommodation. तो रेंट जो आपको पे करना पड़ रहा है वो क्या है? हमारा एक इनडायरेक्ट लॉस है. ये एडिशनल लॉस है. जो हमारी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है उसकी जो कॉस्ट है उससे एडिशनल कॉस्ट हमारा जो है दैट विल बी कंसिक्वेंशियल लॉस. देन वी कम टू लायबिलिटी रिस्क.
It is the risk of being held legally liable if you do something that results in either injury to the body or damage others property etc. For example, कंपनीज के केस में भी लाइबिलिटी रिस्क है. सो इफ अ कंपनी sells some domestic product or some faulty services which causes harm to the users of such product, उनके जो कस्टमर्स हैं, यूज़र्स हैं, अगर उनको किसी तरह के डिफेक्टिव प्रोडक्ट को यूज़ करने से कोई हार्म होता है तो कंपनीज में फेस लॉ सूट. तो कस्टमर क्या है, लॉ सूट करेंगे. लॉ सूट्स के कारण अगर वो हार जाती है कंपनी, क्योंकि लाइबिलिटी रिस्क क्या है, ये इसका कोई लिमिट नहीं होती, कितने भी अमाउंट का लॉ सूट हो सकता है. तो देयर इज़ नो अपर लिमिट विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ लॉस. सेकेंडली, इस अमाउंट को रिकवर करने के लिए किसी भी तरह का चार्ज प्लेस किया जा सकता है ऑन द इनकम एंड एसेट्स ऑफ द कंपनी टू सेटिस्फाई द लीगल जजमेंट. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्क है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. किसी कंपनी को बैंकरप्ट भी ये कर सकती है. जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई तो उससे होने वाला जो हार्म था जो सोसाइटी को, तो वो जो लीगल लॉ सूट्स हैं उसके कारण वो बंदी हो गई. अभी रिसेंटली भी दिल्ली में वो एलजी के प्लांट में जो मिस हैपनिंग हुई थी, तो वो these events they results in lawsuits which are very damaging, not only reputation, financially, हर तरह से बहुत डैमेजिंग होते हैं कंपनी के लिए. तो कंपनीज़ को इवन इंडिविजुअल के लिए भी, इंडिविजुअल से भी किसी की प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, किसी की बॉडी इंजर हो सकती है. जैसे एक्सीडेंट इंश्योरेंस हम कराते हैं या ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस कराते हैं, तो उसमें हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराते हैं. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो हमारा लीगल एस्पेक्ट को ही देखता है, लीगल लाइबिलिटी जो होती है उसमें, दैट वी आर डैमेजिंग द प्रॉपर्टी, द व्हीकल ऑफ द अदर पर्सन एज वेल एज इफ़ वी आर इंजरिंग द पर्सन, तो वो लाइबिलिटी को इंश्योर करता है. तो लाइबिलिटी रिस्क इज द रिस्क ऑफ लॉ सूट्स और बीइंग सूड बाय द अदर पर्सन. देन इज लॉस ऑफ बिजनेस इनकम. Loss of business income, this is part of commercial risk. Commercial risk are risk related to the business. उसमें property risk भी हो गया, liability risk भी हो गया, they are same. Then business income is if a company suffers loss which is covered through insurance or other means, a firm or a company may be shut down due to the damage caused resulting in loss of business income. तो बिज़नेस इनकम क्या है, जैसे अगर कोई डैमेज हो जाता है जिसके कारण से ऑर्गेनाइजेशन को आपको शट डाउन करना पड़ रहा है. फैक्ट्री में आग लग गई, आग लगने के कारण अभी फैक्ट्री जब तक वापस रीस्टोर नहीं होती, जब तक रिपेयर नहीं होती, तब तक शट डाउन रहेगी. तो उस दौरान आपका जो बिज़नेस का जो इनकम का लॉस है, दैट इज़ लॉस ऑफ बिज़नेस इनकम. या कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग आपको वो फैक्ट्री कहीं और लोकेट करनी पड़ी, तो लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस और जो नेक्स्ट जगह जहाँ आपने अपनी फैक्ट्री रेंट पे ली है तो उसका रेंट भी, हाँ, तो ये सारे चार्जेस जो है दे आर अगेन लॉस ऑफ बिजनेस इनकम. इसके अलावा इवन अगर शट डाउन चल रहा है तो भी कुछ एक्सपेंसेस हैं जो कि आपको बियर करने ही पड़ते हैं, हम उनको जनरली फिक्स्ड एक्सपेंसेस बोलते हैं. तो ये भी क्या है, हमारा लॉस ऑफ इनकम ही है, क्योंकि हम अर्न कुछ कर नहीं रहे हैं एंड एक्सपेंसेस आर एज इट इज. सो दिस इज रिस्क टू द कंपनीज. देन अनदर रिस्क इज साइबर सिक्योरिटी. साइबर सिक्योरिटी मीन्स लाइक हैकिंग हो सकती है कंप्यूटर सिस्टम की, आपके डेटाबेस से डेटा चोरी हो सकता है. देन आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है, किसी तरह की रॉबरी, बर्गलरी, शॉपलिफ्टिंग, dishonesty, piracy, theft of intellectual property, computer crimes, fraud है, embezzlement है. तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी साइबर सिक्योरिटी और आइडेंटिटी थेफ्ट का रिस्क है. एंड दीज रिस्क नीड्स टू बी मैनेज्ड. द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्क इज क्रेडिट रिस्क.
क्रेडिट रिस्क अकर्स व्हेन कस्टमर फेल टू फुलफिल देयर डेट। आपके कस्टमर ने पैसा लिया है आपसे, उधार चीज़ ले रखी है, बट वो उसको रीपे नहीं कर रहा है, तो आपकी कंपनी क्या फेस कर रही है? क्रेडिट रिस्क। दिस काइंड ऑफ रिस्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एस बैंक। हम स्टडी करते हैं कि एनपीएस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बैंकिंग में, तो वो एनपीएस क्या है? वो क्रेडिट रिस्क है बैंक्स के लिए। देन इज असेट लायबिलिटी गैप रिस्क। दिस रिस्क occurs due to gap or mismatch in size as well as timings of the cash flows between assets and liabilities, either due to liquidity changes or changes because of interest rates. So there is a mismatch. Cash flows, हम cash outflows को हम मैच करते हैं इनफ्लोज के साथ। आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रखी हैं, तो हम अपने आप को, अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए कैश इनफ्लोज को कैश आउटफ्लोज से मैच करते हैं। तो कौन कौन से सोर्सेज होंगे जिनसे हमारे पास कैश इनफ्लो होगा और आउटफ्लो कहाँ होगा, ये आइडेंटिफाई करके रखते हैं। तो इस तरह से मैचिंग की जाती है कि इनफ्लोज जो हैं वो हमारे आउटफ्लोज को पे आउट कर सकें। पर अगर ये मैच जो हमने किया है ये मिस मैच हो जाए किसी भी कारण से, या ये इनमें गैप आ जाए। गैप कैसे आएगा? कि इंटरेस्ट एक्सपेक्ट किया था पर वो रिसीव नहीं हुआ, या इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, तो आउटफ्लो डिफरेंट हो गया, इनफ्लो डिफरेंट हो गया, तो देयर इज़ अ मिसमैच। तो इस मिसमैच के कारण, इस गैप के कारण जो रिस्क अराइज हो रहा है, दैट रिस्क इज असेट लायबिलिटी गैप रिस्क। इसी तरह से एक और रिस्क है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट रिस्क। दीज आर अदर रिस्क। ये जो यहाँ पे अदर्स है, ये अदर्स रिस्क है। इंटरेस्ट रेट क्या है? रिस्क विच अकर्स ड्यू टू चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया तो हमारे आउटफ्लो इनफ्लोज पे इफ़ेक्ट डालता है, हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अफेक्ट हो जाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है और हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो ऑब्वियसली हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है। देन अनदर टाइप ऑफ रिस्क इज ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस मीन्स ड्यू केयर, यानी जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो हमको कुछ केयर अपने आप ही लेनी ज़रूरी है। Like we need to investigate, we need to do the risk assessment and we need to validate all assumptions. तो ऐसे आंख बंद करके हम चीज़ें नहीं कर सकते। We need to be careful. तो अगर हम वो केयरफुल नहीं हैं, हम एक्स्ट्रा केयर नहीं ले रहे, तो we are exposing ourselves to a risk and that risk is due diligence risk. Then other risks are like human resource exposure. Human रिसोर्स एक्सपोजर। ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोजर मीन्स कि आपके ह्यूमन जो रिसोर्स है, आपका पर्सनल जो है वो एक्सपोज्ड है, उसके कारण होने वाला रिस्क। उनको किसी तरह का डैमेज हो सकता है, डिसेबिलिटी हो सकती है, या वो कोई थेफ्ट कर सकते हैं, कोई फ्रॉड कर सकते हैं, या आपका जो की एम्प्लॉई है उसको दूसरी कंपनीज हायर कर सकती हैं और उसके साथ आपके जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो जा सकते हैं। तो you are facing a human resource exposure risk या loss exposure. Then there may be a currency risk as well. Currency risk होता है कि रेट ऑफ एक्सचेंज जो है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसके चेंज होने के कारण करेंसी रिस्क जनरली वो कंपनीज फेस करती हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं। तो जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होगा तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। देन इंटैंजिबल प्रॉपर्टी एक्सपोजर हो गए। इंटैंजिबल प्रॉपर्टी मीन्स आपका कॉपीराइट हो गया, पेटेंट्स हो गए, या ट्रेडमार्क है, गुडविल, ये सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती हैं। कॉपीराइट,
तो इनकी चोरी, इनसे रिलेटेड जो भी रिस्क है, दे आर इंटेलेक्चुअल इंटैंजिबल प्रॉपर्टी एक्सपोजर। गवर्नमेंट एक्सपोजर है, देन फॉरेन लॉस एक्सपोजर। फॉरेन लॉस एक्सपोजर यही है कि फॉरेन की जो ट्रीटी अगर मान लीजिए गवर्नमेंट चेंज कर देती है, फॉर एग्जांपल नाउ डेज वी आर नॉट हैविंग एनी ट्रेड विद चाइना, तो चाइना से जो रॉ मटेरियल ले रहे थे या जो चाइना से डीलिंग कर रहे थे, उसके कारण जो है सारा का सारा जो है उनका ट्रेड ठप हो गया है, बंद हो गया है। तो दे आर फेसिंग दिस फॉरेन लॉस एक्सपोजर। सो दिस वाज अबाउट द टाइप्स ऑफ रिस्क। तो ये सारी क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा भी आप अदर्स में और भी बहुत सारे रिस्क जो हैं यहाँ पे लिख सकते हैं आप। तो दीज आर बेसिकली द ब्रॉड काइंड ऑफ रिस्क विच आर फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज इंडिविजुअल्स। देन वी नीड टू मैनेज द रिस्क। अब ये तो टाइप्स हो गई, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इतने टाइप्स के रिस्क है, इनको मैनेज करना ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ मेंट बाय रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे हम दो टर्म्स और देख रहे हैं रिस्क के अलावा। एक तो रिस्क है, एक है लॉस एक्सपोजर और एक है पेरिल्स। क्या होती हैं ये टर्म्स? रिस्क वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज़ मेंट बाय रिस्क। इट इज़ द अनसर्टेनिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ लॉस, कि लॉस हो जाएगा या नहीं होगा, एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो उस अनसर्टेनिटी को हम रिस्क बोलते हैं। लॉस एक्सपोजर क्या होती है? ये एक सिचुएशन है। इट इज़ अ सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस इन विच अ लॉस इज़ पॉसिबल। कोई सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल वी आर मूविंग, वी आर गोइंग टू अ फॉरेन ट्रिप, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट। अगर वॉर में जा रहा है कोई, सो देर इज़ अगेन अ रिस्क एक्सपोजर टू द लाइफ। सो एनी सिचुएशन और अ सर्कमस्टेंस इन विच अ लॉस इज़ पॉसिबल, तो उस सर्कमस्टेंस को, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? लॉस एक्सपोजर। लॉस एक्चुअली में हो या नहीं हो, दैट इज़ अनदर इशू, पर वो जो सिचुएशन है जहाँ पे लॉस की पॉसिबिलिटी है, उस सिचुएशन को ही हम लॉस एक्सपोजर बोलते हैं। पेरिल क्या होती है? पेरिल्स आर कॉजेज ऑफ लॉस। लाइक फॉर एग्जाम्पल रिस्क क्या है? प्रॉपर्टी रिस्क है। प्रॉपर्टी रिस्क में लेट्स सपोज होम इज डैमेज्ड बाय फायर, आग लगने के कारण घर जल गया, तो रिस्क किसको है? प्रॉपर्टी को। रिस्क तो है यहाँ प्रॉपर्टी। लॉस एक्सपोजर क्या है? सिचुएशन क्या है? द होम इज डैमेज्ड। कॉज क्या है? फायर, तो फायर इज पेरिल, लॉस एक्सपोजर इज डैमेज टू होम एंड रिस्क इज प्रॉपर्टी रिस्क। नाउ वी नीड टू मैनेज दिस। रिस्क मैनेजमेंट में क्या है? इस रिस्क को मैनेज करना है। द मीनिंग ऑफ रिस्क क्या है? दैट रिस्क मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस विच आइडेंटिफाइज लॉस एक्सपोजर्स। यानी सबसे पहले तो हमें किसी भी, लेट्स सपोज हम बिजनेस का रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? वी विल आइडेंटिफाई द लॉस एक्सपोजर्स फेस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहले आइडेंटिफाई कर लिया। अब इससे पहले हमने जितनी टाइप्स पढ़ी हैं, तो उन टाइप्स में सारी की सारी नहीं रिस्क कोई ऑर्गेनाइजेशन फेस कर सकती है। कुछ होंगी जो कि वो फेस कर सकती है। लेट्स सपोज वो फेस करती है फॉरेन एक्सपोजर, हो सकता है उसका फॉरेन लॉस एक्सपोजर है, गवर्नमेंट एक्सपोजर है उसका, या करेंसी रेट चेंज हो सकते हैं, करेंसी रिस्क है उसको, करेंसी रिस्क। ठीक है, इस तरह से कुछ रिस्क होंगे जो कि आप आइडेंटिफाई करेंगे। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, एंड देन यू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक फॉर ट्रीटिंग सच एक्सपोजर्स और रिस्क। अब इनको ट्रीट करना है। ट्रीट करने में क्या, हम इनको ख़त्म नहीं कर सकते कि हमको रिस्क मैनेज किया और हमने जो है फॉरेन लॉस को ज़ीरो कर दिया या अब ये कंपनी को होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। इंस्टेड द लॉस विल बी ईदर मिनिमाइज्ड और
कंट्रोल्ड। तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं कि हम रिस्क को मिनिमाइज़ कर दें कि पहले हमारा रिस्क जो है दैट वाज ऑफ 50 लाख रुपीज़, नाउ इट हैज़ रिड्यूस टू ओनली 1 लाख। तो हमने मिनिमाइज़ कर दिया या कंट्रोल कर दिया, यानी कि पहले साल में 5 बार होने की उम्मीद थी, अब एक ही बार होने की उम्मीद है। तो सिवियरिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी अमाउंट को, और फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं, पूरी की तरह से इसको ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे इन द क्लास। द रेस्ट ऑफ इट, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स of risk management and what is the process and how we will, what are the techniques of treating these risk, ये सब हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। That is all for today. Thank you.